جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارف مظفر آپ کے ساتھ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان میں رمضان کے لحاظ سے تھوڑی سی خاموشی چل رہی تھی، اسی کو میں نے عافیت جانا اور میں کسی طرف بھی توجہ نہیں دیتی، مگر ظاہر انٹرنیشنل نیوز اور پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے یا اس کی جو پوزیشن ہے اس کے لحاظ سے نیوز دنیا میں چلتی ہے، ہم سنتے بھی ہیں اور انٹرنیشنل نیوز کو دیکھا بھی جاتا ہے. رشیا کے الیکشن آپ کے سامنے گزرے اور دیکھیے صاحب کتنی جگہوں پہ الیکشن ہوئے، تائیوان میں ہوئے، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں ہوئے، بہت سی جگہوں کے اوپر وہاں کے عوام نے کہا کہ الیکشنز میں ریگنگ ہوئی ہے، مگر ٹس سے مس نہیں ہوئی. مغرب رشیا کے الیکشن کے لیے یہ آ گیا کہ جی ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، ہم یہ آنے والی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. اینی ویز تو پاکستان کی جیو پولیٹیکل کنڈیشن کو میں ضرور دیکھ رہی تھی اور یہ جو صورتحال اب کی ڈیولپنگ جو سٹوری ہے اور جو ڈیولپ ہو چکی ہے کسی حد تک، اس کے حوالے سے the most suitable person I found کہ مجھے جناب عبداللہ گل صاحب سے بات کرنا چاہیے. جناب ایک تو جس گود میں انہوں نے پرورش پائی، جناب لیفٹیننٹ جنرل حمید گل صاحب، جنہوں نے بڑا ایکٹیولی اپنا رول پلے کیا اور یقیناً وہاں سے جو بچے سیکھتے بھی ہیں، لرن کرتے ہیں کہ کیا کیسے ہو رہا ہے، اینالائز کرنا سیکھتے ہیں. ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میری اس ریکویسٹ کو قبول کر لیا. آج کے پروگرام میں جو میرے ساتھ ہیں، اگین آئی جسٹ براٹ ان somebody جو بہت قریب سے ان اداروں کے ساتھ، ان شخصیات کے ساتھ ان سبجیکٹس کے اوپر کام کر رہا ہے. میں انہی سے آپ کی ڈائریکٹ بات کروانا چاہ رہی تھی. آج کے پروگرام میں جو ہم چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، آف کورس پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن کے لحاظ سے اس وقت جو نئی انفولڈنگ سچویشن ہے وہ آپ کے ساتھ کہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے. پاکستان افغانستان کہتا ہے کہ انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی، پاکستان کہتا ہے نہیں ہم نے تو بارڈر پہ کیا، کون سچ ہے کون غلط ہے. آج امریکہ نے بھی اسٹیٹ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے بیان دے دیا ہے کہ ہاں جی طالبان تو تھریٹ ہیں، وہ تو دہشت گردی کر رہے ہیں، مگر وہ اسٹیٹ والے یہ کیوں نہیں بیان دیتے کہ ان کے پیچھے اور کون کون. آپ کو پتہ یہ کتنے طالبان آر ورکنگ ود انڈینز، کتنے بلوچیز آر ورکنگ ود انڈینز، اینڈ پاکستان اٹ سیلف از سفرنگ اے لاٹ. انہی حوالے سے ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ جب یہ تمام کی تمام صورتحال ہے تو اسی تناظر میں ہم بات کریں گے. آف کورس پاکستان آئی ایم ایف سے اپنی اگلی قسط لینا چاہ رہا ہے، مگر آئی ایم ایف کی نے ایسے پیسہ نہیں دے دینا، اس کی کنڈیشنز، اور کنڈیشنز میں سب سے پہلی تلوار چلنی ہے ہمارے دفاعی بجٹ کے اوپر. دے وانٹ ٹو ٹیک کنٹرول آف اٹ. دس از واٹ the نیوز از آؤٹ سائڈ. مگر ہم جناب عبداللہ گل صاحب سے ہی اس کی تصدیق یا تردید چاہیں گے. آف کورس امریکہ کے لیے سب سے بڑی تھریٹ، اور امریکہ نے اوپنلی یہ نیوز پیپرز میں اور ہر میڈیا کے اوپر یہ کہا ہے کہ the whole NATO will look after Russia and other things and Ukraine, whereas America want to look after China itself because they want to. چائنا دنیا کی سب سے بڑی امریکہ کے بعد ابھرتی ہوئی طاقت ہے. اسی 3-4 چیزوں کے لیے ہم بات کریں گے جناب عبداللہ گل کے ساتھ. سر آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے میری اس درخواست کو قبول کیا، اور اگین اگر ہم اس کو سمجھیں تو میرا مقصد صرف وہ قیاس آرائیوں کو بیچ میں سے نکالتے ہوئے ڈائریکٹ اس شخص سے بات کرنا جو ان حالات میں ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے. واٹ ڈو یو سی، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل کنڈیشن، انڈیا کے ساتھ ایسٹ میں ہمارے تعلقات خراب تھے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بگڑانے کے لیے براہ راست ایک جنگ کا ماحول کریٹ ہوا، بلوچستان انسٹیبل ہے، اور آج یہ جو افغانستان کے ساتھ وی آر مسلم کنٹریز، وی کین سٹ ڈاؤن اینڈ ریزالو دا پرابلم. کچھ اس کے بارے میں فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. دیکھیں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یقین مانیے کہ میں بہت ڈسٹربڈ ہوں، اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم، جیسے آپ نے ذکر کیا، 900 تقریباً کلومیٹر لمبا بارڈر ایران کے ساتھ، 2650 افغانستان کے ساتھ، اور انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ 3000 پلس جو ہے بارڈر، اور تو پھر آپ کے 4 پڑوسیوں میں سے اگر
एक जो है वो सिर्फ चल रहा है और बाकी सारे आपसे नाराज़ हो चुके हैं, तो हमें ये देखना है कि वो बाकी क्यों नाराज़ हैं आपसे। और ये जो 4 में से आप इसकी अगर वो है निकाल लें, नंबर लगा लें, तो तकरीबन 75% जो आपके जो डिप्लोमेसी है, वो फेलियर है और 25% जो चाइना के साथ है, वो कामयाब है। अब 25% का मतलब ये है कि आपका जो चाइना है, वो तो आपको पता ही है कि उनकी मजबूरियाँ हैं, उन्होंने बहुत हेवीली इन्वेस्ट किया है। तो हमारे जो सी पैक प्रोजेक्ट्स हैं, इसी तरीके से चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। अगर एक तरफ नॉर्थ कोरिया उनका जो है वो एक लाइन ऑफ डिफेंस है, तो दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान उनकी जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसलिए चाइना के स्ट्रेटेजिक डिफेंस और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं, वो यहाँ आके हमारे साथ जो है वो उनका एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो फॉर्म होता है। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान और चाइना के बहुत पुराने देरीना ताल्लुकात भी हैं। जब चाइना मुश्किल हालात में था, तो पाकिस्तान ने उसको बड़ी जगह पे मदद की। असल में ये स्टोरी बताने वाली है कि जब दुनिया की कोई फ्लाइट वहाँ नहीं जाती थी, तो पीआईए ऑपरेट करती थी। जिस तरीके से चाइना को कोई इक्विपमेंट नहीं जाता था, तो पाकिस्तान की तरफ से जाता था और इसी तरीके से चाइना जो पढ़ने लोग आते थे, वो पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, दीगर जगहों के ऊपर वो पढ़ाई करते थे और पाकिस्तान से इंजीनियरिंग और मेडिकल को जो है वो सीख के अपने मुल्क में लेके गए। ये तो एक पुराना ताल्लुक है। बहरहाल, इससे मुबर्रा अब हम आते हैं इस मौज़ू के स्पेसिफिकली। अब चाइना जो है वो भी हमारे से थोड़ा-सा जो है वो नालां है और उसका जो काम खराब होना शुरू हुआ, वो आपको याद है कि इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जिसके अंदर बड़ा एक उनके मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने एक मुतनाज़ा बयान दे दिया, जिसके ऊपर फिर बहुत ले-दे हुई। नतीजा ये हुआ कि फिर सी पैक जो है वो थोड़ा-सा गो स्लो हो गया। उसके बाद ज़ाहिर है मुल्क के अंदर अफरा-तफरी रही और अब जो है चाइना रिसेंटली वाखान कॉरिडोर जो कि एक पट्टी है 99.1 किलोमीटर, जो हमारे बिल्कुल एक साइड के ऊपर जो है वो बिल्कुल अक्रॉस जो है वो आपको पता है कि अफ़गानिस्तान और फिर साथ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और फिर रशिया जो है वो आ जाता है और एक तरफ चाइना है। तो ये चीज़ें जो वाखान कॉरिडोर है उसके ऊपर उन्होंने एक बाकायदा ब्रिगेड हेडक्वार्टर बना लिया है और वहाँ अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बावजूद इसके कि वो बहुत ठंडा और सर्द इलाका और थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड वो कहलाता है, तो इसलिए उसको वहाँ बर्फ के बहुत मुश्किलात हैं, दुश्वार गुज़ार रास्ता है। लेकिन चाइना एक अल्टरनेट रूट जो है, वो वहाँ नूरिस्तान के ज़रिए जो है वो वहाँ निकालना चाहता है, जो कि ज़ाहिर है मुश्किल और कठिन है, उसमें बहुत तकालीफ हैं। लेकिन मरता क्या ना करता, अगर पाकिस्तान के अंदर इसी तरीके से इंस्टेबिलिटी रही और जो हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमारी जो वहाँ सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी रही और हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रही, तो फिर उसके नतीजे में चाइना जो है, उसको अपना अल्टरनेट जो है वो तलाश करना होगा। तो 75% हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो नाकामी का शिकार है और 25% जो है क्योंकि 3 अतराफ आपके जो दोस्त हैं, आपके पड़ोसी जो थे, अफ़गानिस्तान का तो आपको पता है कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ा एक हिस्टोरिक कदम किया था और वो तोरखम जो है बॉर्डर के ऊपर गए और वहाँ अफ़गान एक चेन लगी होती थी, उस ज़माने में सिर्फ़ एक चेन थी, कोई बॉर्डर नहीं था। उसके पार अफ़गान सोल्जर को हाथ मिलाया और कहा कि हम और तुम तो एक ही हैं और उसके बाद ऑपरेशन करज़न किया और उसके साथ तमाम 8 चौकियाँ जो हमारे 8 कैंटोनमेंट थे, गैरिज़न्स थे, उनको ख़त्म कर दिया 48 घंटे के अंदर। इसको ऑपरेशन करज़न कहते हैं। बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि ये सारा इलाका जो है वो पुरअमन रहा और इसके ऊपर पाकिस्तान का एक सिपाही भी नहीं लगा और ये पुरअमन तब तक चलता रहा जब तक कि रूस आके शिकस्त खा के चला भी गया, तब तक हमने बॉर्डर जो है वो उसके ऊपर मैनेजमेंट नहीं की। और उसके बाद हमें जब अमेरिका आया तो हमें मजबूरन अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा और तकरीबन 2.25 लाख फौज जो है वो आज तक वहाँ डिप्लॉयड है और उसमें बहुत हेवी कैजुअल्टीज़ जो है वो हम रिसीव कर रहे हैं। हमें बाड़ लगानी पड़ी जो कि एक बहुत महँगा प्रोजेक्ट था, लेकिन हमने वो बाड़ लगाई जो कि आज भी उसको बाड़ को लगाना और बाढ़ को सँभालना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बहरहाल, ये उसका एक एस्पेक्ट है। दूसरी तरफ जो है वो हमारा अल्लामा इकबाल का जो एक विज़न था जिसके अंदर वो कहते थे कि एशिया जो है वो अफ़गानिस्तान से ओरिजिनेट होता है और अमन जो एशिया का है वो भी अफ़गानिस्तान से ओरिजिनेट होता है। बहरहाल
कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के विज़न को आज यहाँ कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग बहुत सयाने हैं मेरे ख़्याल में, वो ज़्यादा समझते होंगे, हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये उनका विज़न था। मेरे वालिद मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह जो है, वो हमेशा अफ़गानिस्तान के हवाले से उनका एक ख़ास किरदार है और मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर हमें जो अपनी स्ट्रैटेजी है, उसको देखना होगा। सबसे पहली बात ये है कि 2021 में जब 15 अगस्त को काबुल में उनकी हुकूमत कायम हुई बगैर गोली चले और दोहा मुज़ाकरात के नतीजे के अंदर ये अमल हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान ने उनको तस्लीम नहीं किया। उस वक़्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने 2 मुख्तलिफ इजलास, एक ओआईसी का हंगामी इजलास बुलाया, जो उनकी मदद के लिए बुलाया गया और कहा कि जी इतने जो मिलियन हैं, हम उनको देंगे और डॉलर देंगे। उसमें सऊदी अरब ने भी एक ख़तीर रकम जो है वो कमिट की, लेकिन बाद में वो वहाँ तक ना पहुँच पाई। उसके बाद जो है वो एक वज़राए ख़ारिजा का इजलास हुआ ओआईसी का, जो कि मार्च 2022 के अंदर हुआ, उनकी हुकूमत जाने से चंद रोज़ कबल। लेकिन उसके बाद जो है वो उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। हमने उनको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि हमारे ऊपर अमरीकी दबाव था। ये एक रियलिटी है और अमरीकी दबाव को रद्द क्यों नहीं किया गया, ये मेरी ख़ारिजा पॉलिसी की जो है कमज़ोरी और नाकामी है। मैं पहले भी इसको कहता रहा हूँ कि हमारी ख़ारिजा पॉलिसी होनी चाहिए है, ना कि ख़ारिजी पॉलिसी होनी। हमारे लगता ये है कि फ़ॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा फ़ॉरेनर्स पॉलिसी जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। बहरहाल ये तो अभी एक अपनी जगह है। ईरान जो है जिसके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात और ईरान का जब तक कि इनकलाब-ए ईरान ना आया, पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन ईरान के इनकलाब के बाद कुछ हमारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई। लेकिन अब उनके अंदर एक शदीद ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रवाबित जो है वो इख्तियार किए जाए। मैं अभी हालिया जो अपने दौरा ईरान में गया तो वहाँ जो वहाँ के हाई अप्स के साथ मुलाकात हुई और ख़ातमी साहब से भी जो उनके इब्राहिम रईसी साहब हैं, उनसे भी जो सदर हैं ईरान के, उनसे भी एक जो है मुलाकात हुई। तो मैंने उनको बहुत मस्बत पाया पाकिस्तान के हवाले से। आज तेल, गैस और फ्यूल की अगर हम वो जो बिजली की तिजारत अगर उनसे कर लें, बार्टर ट्रेड की शक्ल में, तो तकरीबन ये हमारा हुजम पहले साल $15 बिलियन तक जो है वो पहुँच सकता है और $15 बिलियन का मतलब ये है कि हमें किसी मग़रिब की ज़रूरत नहीं रहती और हमारा अपना जो ट्रेड है वो भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ जो है वो हमें डॉलर में नहीं करना पड़ेगा और तीसरी बात ये है कि हमारे मुल्क की मईशत जो है वो सँभल जाएगी क्योंकि मईशत का जो पहिया है, वो इंडस्ट्री के ऊपर चलता है और इंडस्ट्री जो है वो इस टाइम पे बंद होती जा रही है। पिछले 3 साल के अंदर 324 यूनिट सिर्फ़ और सिर्फ़ जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स थे जिनको इंडस्ट्री कहते हैं, वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो थे वो केपीके के अंदर बंद हो गए। मतलब आप सिर्फ़ बाकी मुल्क को तो छोड़ दें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जो सब्सिडीज़ ख़त्म की हैं, पहली बात ये है कि इससे अवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। 1054 यानी कि $1054 जो है फ़ी कश आमदन है पाकिस्तान की, लेकिन ये पहले के फ़िगर्स हैं और ये जो अनऑफ़िशियल फ़िगर्स हैं, उसके मुताबिक तकरीबन इस टाइम पे $800 जो है फ़ी कश आमदन जो है, वो पाकिस्तान की रह गई है। ये एक बहुत खतरे की घंटी है और ये बेरोज़गारी जो है वो बढ़ रही है मुल्क में। इंडस्ट्री जो है वो शिक होके बंद होती जा रही है। इसी तरीके से जो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन लाइन्स हैं, उनको आप इस बढ़ती हुई महँगाई के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकते। 18% बिजली जो है उसकी निर्खों में इज़ाफ़ा हुआ है सिर्फ़ पिछले 6 माह के अंदर, तो 18% तो प्रॉफ़िट मार्जिन्स भी नहीं हुआ करते, तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ़ बुलंद-बांग दावे हैं कि जनाब आप जो है वो मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी। मुल्क एक दुकानदारों का मुल्क बन के रह गया है और जो हमारी इकोनॉमी है या वो आप कह लें प्रॉपर्टी के साथ चल रही है, प्रॉपर्टी डीलरों की है या फिर जो है वो हम ये देख रहे हैं कि उनकी जो बाकी की सिलसिला रह गया है, वो हमारा सारा का सारा जो रोज़ाना की, रोज़मर्रा की परचून की दुकानें हैं, उनके ऊपर चल रहा है। ये बड़ा अफ़सोसनाक मेरे ख़्याल में है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि मैंने ज़ाहिर है अपने जो सब्जेक्ट कवर किया, आपने तफ़सील से हर एक पे रोशनी डाली। अब मुझे मौका मिलेगा, अगर आपकी इजाज़त हो, तो मैं इन्हीं से मुतल्लिक चंद एक सवालात आपके साथ करना चाहती हूँ। आपने सबसे पहले तो जो ज़िक्र किया कि चाइना का एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है,
आई डोंट नो बाज़ जगहों के ऊपर हम क्यों भूल जाते हैं कि चाइना के इंटरेस्ट है तो पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट हैं। जब भी पाकिस्तान का पानी बंद हुआ या पाकिस्तान की बॉर्डर्स के ऊपर कुछ हुआ या कभी वहाँ से सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो चाइना हमेशा वहाँ पे खड़ा हुआ था शाहराह रेशम को सपोर्ट करने के लिए। यानी वो एक वक्त था जब पाकिस्तान ने मदद की थी, बट नाउ चाइना इज बिहाइंड अस इन एवरी वे शेप एंड मैनर। तो पाकिस्तान की भी तो एक उनसे ऐसा रिश्ता है ना कि वी ऑल्सो नीड देम। एक बात तो मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ। और सर आपने ये कहा कि चाइना जो है वो भूल गया कि नहीं, चाइना को याद है और हमारा जो ताल्लुक है कि पाकिस्तान ने उसकी मदद की थी। अमेरिका के लिए हमने जान दे दी सर। अमेरिका के कंटेनर्स के कंटेनर आए, हमने उनको चेक ना किया, उनके सीआईए के बंदे यहाँ आके बाकायदा नौकरियां करते रहे। अब तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लग गए हैं ताकि अंदर की खबरें अंदर से बाहर दे सकें। तो हमने अपनी सड़कें ख़त्म कर दी, हमने अपना वहाबीज़म को इतना प्रमोट कर लिया था, हमने उनकी खातिर हमने अपना जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है उसको भी हमने मतलब बड़ा वॉलेटाइल कर लिया। तो अमेरिका क्या आपकी उन कुर्बानियों को याद रखता है? आज आईएमएफ जो है, डू यू थिंक कि ये तमाम इक़दामात जो हो रहे हैं ये कैन लीड टुवर्ड्स टू डीन्यूक्लिफाई पाकिस्तान? इज देयर एनी ट्रुथ इन इट? आपने तो मेरे मुँह की बात ले ली, मेरा तो ये सब्जेक्ट है। मैं तो पिछले कई सालों से चिल्ला रहा हूँ कि वो डीन्यूक्लियराइज़ करना चाहते हैं और डीन्यूक्लियराइज़ेशन के लिए ज़रूरी है कि वो डीमिलिटराइज़ करें। इसी वजह से अफ़वाज के मुतल्लिक जो एक कैंपेन है, वो भी चल रही है। मैं नहीं कहूँगा कि इसमें 100% जो है अफ़वाज जो है वो क्लीन है, कहीं गलतियाँ होती हैं, अपनों से भी गलतियाँ होती हैं, हमसे भी हो जाती हैं। लेकिन ओवरऑल शहादतें भी तो वही देते हैं। दूसरी बात ये है कि डी-इस्लामाइज़ेशन करें। डी-इस्लामाइज़ेशन जब आप करेंगे, नाच-गाना आपने देखा बड़ा आम हुआ, मुख्तलिफ़ किस्म के जो औरत मार्च में बुराई नहीं है, लेकिन जिस रंग में औरत मार्च की गई, वो मेरे ख़्याल में उसके ऊपर सवालिया निशान कुछ बन सकते हैं। और फिर चाइना को डी-लिंक करना, अब आप आईएमएफ का ज़िक्र आपने कर ही डाला है, तो आईएमएफ ने जो बड़ी वाज़ेह शराइत बताई हैं, पहली बात ये है कि गोपीनाथ जो उनकी एक डायरेक्टर हैं आईएमएफ की, इंडिया वो फुल प्ले कर रहा है। इंडिया तो अमेरिका में लॉबिंग इतनी कर रहा है और आईएमएफ में तो इंडिया आपको वहां जाके बांध के रखेगा जहां से आप अपना हाथ भी नहीं हिला सके। देखें, इंडिया के जो भारतीय निजात लोग हैं, तकरीबन 38 की पोज़ीशंस में अमेरिका में बैठे हुए हैं, जिनमें एक तो वाइस प्रेज़िडेंट खुद हैं, कैमला हैरिस साहिबा और इसी तरीके से जो ये आईएमएफ की जो हेड हैं जो पाकिस्तान को डील कर रही हैं, ये भी एक इंडियन निजात खातून हैं। और इंडिया ने बड़ा वाज़ेह कैटेगोरिकली ये बोला है कि जी, पाकिस्तान को आप बेशक मदद करें, लेकिन आईएमएफ का जो पैसा है, वो दिफ़ाई अखराजात के ऊपर नहीं जाना चाहिए। बड़ा उन्होंने वाज़ेह बोला है। और दिफ़ाई अखराजात का मकसद ये है कि पिछले 5 साल से पाकिस्तान का जो दिफ़ाई बजट है, वो आईएमएफ के फंड के ऊपर जो है वो इन्हिसार कर रहा है। ये एक बहुत लम्हे फ़िक्रिया है, ये बहुत खतरनाक है और इसके भयानक नताइज जो है वो निकल सकते हैं। अब आईएमएफ ने जो कहा है ये अब आपके लिए न्यूज़ है। आईएमएफ ये कहता है कि आप हमें डिटेल्स दें सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की कि वो अपना पैसा जो है, वो जो सीक्रेट फंड्स हैं, वो कहाँ खर्च करते हैं। देखें, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, कई-कई इजादात की जा रही होती हैं, कई ऐसे खुफिया प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, कई ऐसे जो है इंटरनेशनल ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, साइऑप्स चल रहे होते हैं, साइबर ऑप्स चल रहे होते हैं। क्या उन सबको जो है वो तश्त-ए-तस्बाम कर दिया जाए, बता दिया जाए? इसी तरीके से हमारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, वो कहते हैं कि जी हमें बताएँ कि आपने कहाँ-कहाँ खर्च किए हैं। ये अंदरून खाता, ये कोई आपको इस बात को एग्री नहीं करेगा, लेकिन ये बाकायदा उनकी ख्वाहिशात हैं और ये उसको अब अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। इसको कहते हैं सॉफ्टनिंग द टारगेट, यानी कि पहले आप किसी भी टारगेट के ऊपर हमला करने से पहले, जैसे नींबू को निचोड़ने से पहले आप नरम करते हैं थोड़ा, आज पाकिस्तान को आईएमएफ के ज़रिए नरम किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान के ऊपर जब डॉलर जो है वो ₹500 पे चला जाए, जो पाकिस्तान की हालत है वो बिल्कुल आईएमएफ के आगे घुटने टेक दे और हर किस्म की जो शराइत है उनको कबूल कर ले, तो फिर उसके बाद वो कहें कि लाओ अपना न्यूक्लियर हमारे हवाले कर दो, इसको कैप कर दो, इसको जो है रिवर्स कर दो, इसको जो है डिमेंटल कर लो, इसको जो है वो टोटल तल्फ कर दो। और ये बात आज की नहीं है, मैं आपको इससे पहले बताता हूँ कि ये एक ख्वाहिश कहीं जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ,
उनके ज़माने के अंदर ये एक बात अमेरिकन्स ने उस टाइम पे कही थी। और अमेरिकन्स जो थे वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो अपना न्यूक्लियर जो है वो सरेंडर कर दे, और उसके हालाँकि उस टाइम पे हम न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर नहीं हुए थे, लेकिन अनऑफिशियल तो हम 1983 के अंदर हमने वो जो रेड लाइन थी वो क्रॉस कर ली थी। इसलिए बहरहाल जो सूरत-ए-हाल है वो जनरल आसिफ नवाज़ ने ये सोचा, लेकिन फिर उस टाइम पे मेरे वालिद साहब ने उनको ये कहा कि जनाब आप कैसी बात कर रहे हैं? आप सुपर पावर के साथ ऐसे वादे-वईद नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ी है कि जी आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप दोबारा बना लेंगे, फिर दोबारा कोई बनाने नहीं देता। तो बहरहाल वो मामला जो है वो खत्म हो गया, यानी कि मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। और फिर बार्थोलोमेव जो थे वो आए, और इसी तरीके से दीगर लोग आए, और उन्होंने बाकायदा गुलाम इसहाक खान साहब से बात की, जो कि उस वक़्त सदर पाकिस्तान थे। ये 90s के अवाइल की बात बता रहा हूँ। गुलाम इसहाक खान साहब से उन्होंने कहा कि एक आर्टिकल उसके बाद छपा उस मुलाकात के बाद कि मिस्टर प्रेसिडेंट, वी सस्पेक्ट दैट in your backyard there is a bird which quacks like a duck, which walks like a duck, and it looks like a duck, and we believe that it is a duck. यानी कि हमें अंदाजा है कि आपके पास एक न्यूक्लियर है। उसके ऊपर गुलाम इसहाक ने कहा कि इट मे लुक लाइक अ डक, इट मे क्वैक लाइक अ डक, इट मे वॉक लाइक अ डक, बट व्हेन आई से इट इज नॉट अ डक, इट इज नॉट अ डक। तो उन्होंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट, दिस मीन दैट दिस दिस इज योर फाइनल वर्डिक्ट। तो गुलाम इसहाक साहब ने आगे से कहा कि बिफोर लीविंग हैव अ कप ऑफ टी। यानी कि दफा हो जाओ, दूसरे लफ्जों में। और क्या बोला उसके ऊपर, उनके ऊपर आर्टिकल छापा गया न्यूज वीक के अंदर गालिबन, या टाइम मैगजीन में, मुझे भी सही याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर कहा गया कि जनाब मिस्टर न्यूक के नाम से छापा, और फिर गुलाम इसहाक को एक हॉरिबल एग्जाम्पल बनाया गया। ये एक वो रियलिटी है जिसको हमें आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। बहरहाल, अब आईएमएफ ये चाहता है कि वो पाकिस्तान के अशाशाजात, पाकिस्तान की तमाम जो हमारी स्पेशल इंस्टॉलेशंस हैं, हमारी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीज़न के जो मामलात हैं, हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, हमारे जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हमारी जो एंटी एयरक्राफ्ट जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो इसी तरीके से ग्राउंड टू सरफेस मिसाइल्स हैं, हमारे सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, हमारे जो है वो दीगर शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं, उन सब की टेक्नोलॉजी जो है वो किसी सूरत जो है उस तक दस्तरस रखना चाहते हैं। ये उनकी ख्वाहिश है। मैं ये नहीं हरगिज़ कह रहा कि इसमें वो कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल यहाँ भी लोग जो है वो चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं या बिल्कुल, लेकिन मकसद ये है कि यूक्रेन का वॉर हमारे सामने है। अभी आपने ज़िक्र भी किया। यूक्रेन के हवाले से देखें, यूक्रेन ने वादा उनके साथ किया गया कि जनाब आपको जब भी कोई होगा तो आप अपना न्यूक्लियर सरेंडर कर दें, हम आपको जो है वो प्रोटेक्शन देंगे। और सदर ज़ेलेंस्की ने जो है वो जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने फिर पहली दफ़ा जब जंग के अवाइल में ही उन्होंने बोला कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ वादा वफ़ा नहीं हुआ। ये ऐसे ही हैं, इनका सातवाँ बहरी बेड़ा कभी नहीं आया करता। ये कभी अपने, ये सिर्फ दे आर ये अपने मफाद के हैं। ये टिपिकल काउबॉयज हैं। ये इनका फ़ॉर्मूला है कि इफ यू कांट बीट समवन जॉइन देम। इसीलिए अफ़गानिस्तान के अंदर भी इन्होंने उनको जॉइन कर लिया था। जो अफ़गानिस्तान का सब्जेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो टीटीपी के फैक्शंस हैं, वो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और उसके बहुत भयानक नताइज हैं। लेकिन साथ ही साथ ये है कि हमें फिज़िकल अपीयरेंस, क्योंकि कोई फ़ौज भी दुनिया जो होती है, वो अपनी फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर जो है वो ज़्यादा देती है तवज्जो, और फिज़िकल वॉरफेयर के अंदर वो जाना चाहती है, रादर दैन कि अब हमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर जाना पड़ेगा। और पैगाम पाकिस्तान जो कि एक बयानिया बनाया गया था, जो कि मेरे ख़्याल में कुछ ऐसे उसमें रिप्यूटेड मौलवी हज़रात नहीं थे, चंद एक बाकी तो थे। तो वो पैगाम पाकिस्तान जो है, वो बयानिया जो है, वो अभी तक कामयाब नहीं हुआ। मुझे उसकी कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। इसलिए सुपीरियर आइडियोलॉजी को सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि ये दहशतगर्दी की जंग, बकौल साबिक वज़ीर-ए-आज़म निगरान जो थे अनवारुल हक काकड़ ने 60% इसके अंदर इंक्रीज़ कहा था। अभी आप देख लें, दरजंदा की तरफ जो डीआई खान का इलाका है, जो अब आपका मीर अली की तरफ है, जो मकीन है, जो दीगर इलाके हैं, ये सारे के सारे जो है दे आर क्वाइट डिस्टर्ब्ड एरियाज़। और फिर सबसे बड़ी बात ये है आपके लिए कि देखें, आपने भी सुना होगा और मैंने भी सुन-सुन के कान पक गए हैं कि हमने ऑपरेशन करके, आपको याद होगा कि
کہ जनरल आसिफ गफूर साहब जो थे, DGISPR थे, और उन्होंने कहा था कि 96% इलाका हमने क्लियर करा लिया है टेररिज्म से। और अगर क्लियर करा लिया है और बाद में भी हम ये सुनते हैं कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और उसके बाद जो है वो इलाका जो है वो क्लियर कराया गया। फिर दोबारा कैसे पैदा हो जाते हैं? अगर क्लियर हो गया, तो फिर ये उनके सहूलतकार जो है वो कैसे वहाँ आ जाते हैं? ये है असल कहानी। इसका मतलब ये है कि वहाँ एक सुपीरियर आइडियोलॉजी मौजूद है। आपने जो वादे कही किए थे, जो उस ज़माने में खान साहब की हुकूमत में जब मर्जर हुआ था के फाटा का, केपीके सा, तो उस टाइम पे एक वादा किया था, एक खतीर रकम उनके लिए रखी थी। लेकिन वो रुपए जो थे उनको नहीं मिले। अगर उसमें जो मिले, वो फिर पॉलिटिकल एजेंट्स दरमियान में जो वज़राए आला और फिर दीगर जो वज़ीर थे, जो मुशीर थे, जो दरमियान में फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट मुख्तलिफ ऑफ़िशियल्स थे, वो उनकी नज़र हो गया। और बहुत ही एक मेरे ख़्याल में जिसको कहते हैं कि जी पीछे जलेबी बच गए दूसरे लफ्ज़ों में, वो जलेबी बेचारों को पहुँचे, बाकी तो सारी मिठाई जो थी वो भाई लोगों ने आपस में ही बाँट ली। तो ये एक हाँ, ये एक अलमिया है। मैं यहीं से, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे आपकी बातों के साथ बहुत सारी चीज़ें, और आप इनसाइड आउट। आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का ज़िक्र किया कि अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर क्या था। आज आप देखिए अफ़गानिस्तान जितने बुरे हालात में से गुज़रा, एक पैसा ओ नहीं करता दुनिया को। उन्होंने अपनी दे आर वर्किंग सिंसियरली फॉर देयर ओन कंट्री। उन्होंने अपने मुल्क के बीच में जो प्रोजेक्ट्स वो लगा रहे हैं, और पाकिस्तान में और आर्मी जो मेरी कंट्रोल करती है, वी लव आवर आर्मी। मगर आप कैसे मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे जनरल बाजवा साहब थे जिन्होंने ये जो फेंस लगी थी इसको इनॉग्रेट किया था, व्हाट वाज हिज बेनिफिट आउट ऑफ इट? ठीक, तो these are my concerns, these are my reservations, and of course I have right to talk about those reservations. दुनिया बिल्कुल मफाद परस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने एक और बात की सर, अगर मैं रॉन्ग हूँ, क्योंकि मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स को भी देख रही हूँ। आपने जब इस्लामाइजेशन की लीनियंस की बात की है, आज सऊदी अरेबिया में आप जाके देखिएगा, सऊदी अरेबिया में आपको कहीं भी काबा और मदीना पाक के नाम से टूरिज्म नहीं नज़र आ रहा। दे ओनली प्रमोट, अपने रिजॉर्ट्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं। कुरान के बीच में बड़ा वाज़ेह तौर पे है कि किसी को मस्जिद के अंदर जाने से मना ना किया जाए, मगर वहाँ के कवानीन बदल गए। मैं नहीं कहती कि वो इंतहा पसंदी, और इस हम जब वहाबीज़म आया था तो भी मगरिब के कहने पे आया था, और पाकिस्तानियों ने और ये जो हमारी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने अपने आप को उसके मुताबिक ढालना शुरू कर दिया था। अब जब हम मादर पिदर आज़ाद होने जा रहे हैं और मॉडर्न इस्लाम की बात करें तो भी हम उन्हीं को फॉलो करना चाह रहे हैं। आप याद कीजिएगा जेरल्ड कुशनर और डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने विज़िट किया था सऊदी अरेबिया को, और एक बहुत बड़ा उनका जो IT सेंटर था उसको विज़िट किया गया था। वहाँ पे उन्होंने तमाम का तमाम प्रीवियस निसाब को तलफ कर दिया गया था। उन्होंने कहा हम पूरी दुनिया से अपना लिटरेचर वापस मंगवा लेंगे। डू यू रिमेंबर दैट? तो सर दिस ऑल वहाबिज्म स्टार्टेड फ्रॉम देयर, किसके कहने पे? मगरिब के कहने पे। वहाबिज्म को ख़त्म करके अगर मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके चले, इट इनिशिएटेड बाय वेस्ट, और सऊदी अरेबिया ने उसमें रोल प्ले किया, और हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने मुल्क में। देखिए, मेरे ख़्याल में ये एक तब्दीली का नारा लगा था, बराक ओबामा साहब ने वहाँ अमेरिका में लगाया था, उसके बाद यहाँ इमरान खान साहब ने लगाया था, उधर रजब तैयब एर्दोगान साहब ने लगाया था, और इधर जो है मोहम्मद बिन सुल्तान साहब ने लगाया था। और फिर तब्दीली के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बेसिक नॉर्म्स थे, वो काफ़ी हद तक उनके अंदर तब्दीली आई। ठीक है कि आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अगर आप सऊदियों से बात करें, अभी रिसेंटली मेरी उनके कुछ अहम लोगों से मुलाकात हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर एक तरफ यूएई जो है तरक्की कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम जो है वो क्यों नहीं सिनेमा हाउस बना सकते? हम क्यों नहीं जो है वो टूरिज़्म? लेकिन बहरहाल क्योंकि उनकी एक बहुत ही कंज़र्वेटिव सोसाइटी थी, और उसको ओवरनाइट जो है वो आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो यकीन मानिए कि जो ट्रेन का ट्रैक होता है, उसके अंदर आप 1 मील का जो होता है ना आप सफ़र, उसके बाद आप कहीं हल्का-हल्का कोई 3 या 4 इंच का जो है वो आप कर्व देते हैं, ताकि ट्रेन हाँ, हाँ, तो
आप सोसाइटियाँ भी ट्रेन के ट्रैक की होती हैं, अगर आप उनको यू टर्न दे दें, तो बोगियाँ जो हैं वो डीरेल हो जाया करती हैं। बहरहाल हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, लेकिन जो वहाबिज़्म का आपने बात की, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो देवबंदी जो है इस टाइम पे सबसे बड़ा मसलक समझा जाता है और वहाबिज़्म का यहाँ तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 2 से 2.5% जो है वहाबी हैं, वो मौजूद हैं और वो भी मुख्तलिफ धड़ों के अंदर बँटे पड़े हैं। लेकिन बहरहाल हैविंग सेड सो, असल बात ये है कि जो आपने बात कही डोनाल्ड ट्रंप की, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो गए थे उधर सऊदी अरेबिया, जैरेड कुशनेर उनका जो दामाद है, एक यहूदी है और हार्ट ऑफ मुस्लिम लैंड से उन्होंने हार्ट ऑफ ज्यूइश लैंड को फ्लाई किया था। आपको याद होगा वो इज़राइल भी वहीं सऊदी अरब से फ्लाई करके गए थे, जिसका ज़िक्र आप फरमा रही हैं। तो बहरहाल ये मॉडर्नाइज़ेशन के नाम पे जो आपने बाड़ लगाने का बोला, बाड़ लगाने का क्या फ़ायदा हुआ? देखिए ना, बाड़ को लगाने का असल में हमारे साथ हैंड हो गया, सीधी-सी बात है। अमेरिकन्स ने हमारे साथ धोखा किया। उसका बेनिफिट उन्होंने मटेरियल गेन लिया था। देयर वाज़ नो गेन फॉर पाकिस्तान। आप डिप्लोमैटिकली एक तरफ आपका जनरल जाता है, सुबह-सुबह चाय के कप के साथ फ़ोटो तस्वीर उतरवा लेता है। ऊपर से आप उधर से, मतलब मुझे ये हिपोक्रेसी नहीं समझ आ रही। नहीं, ये जो देखिए ना बाढ़ लगाई तो अमेरिकन्स ने हमारे साथ एक वादा किया था और मेरे ख़्याल में हम उनके ट्रैप में फ़ॉल कर गए और उसके अंदर उन्होंने हमसे कमिट किया था। अभी भी $700 मिलियन उन्होंने कोएलिशन सपोर्ट फंड के पाकिस्तान के अदा करने हैं, जिसके ऊपर वो ₹1 की ब जो है बात नहीं कर रहे। अभी भी जब जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका तशरीफ़ ले गए, तो कोई ऐसे खातिर ख़्वाह बयान सामने नज़र नहीं आए, जिससे ये पता चले कि वो कोएलिशन सपोर्ट फंड हमें मिल गया और अमेरिका ने क्योंकि अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील कर ली है इस खित्ते के अंदर, इसलिए उसने पाकिस्तान से जो है वो किनारा कर लिया। अब उसको सिर्फ़ एक ही गम खाया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान पूरा का पूरा जो है वो चाइनाज़ के लैप में ना चला जाए, चाइना की झोली में चला जाएगा तो ज़ाहिर है उनको इस रीजन के अंदर जो उनका एक पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है, वो उनसे हाथ से निकल जाएगा। ये उनको वाहिद तकलीफ़ है, बाकी उनका दे डैम पता केयर नहीं है, अबाउट। पाकिस्तान कहीं नहीं उनके हाथ से जा रहा। अब मैं तो हाँ, वेस्ट के पेपर्स को जब देखती हूँ, आप जो कह रहे हैं इट्स टोटली ऑपोजिट टू दैट। पाकिस्तान हम सिर्फ यही कि अभी तक अड्डे नहीं दिए, मुशर्रफ साहब के दौर में वो दे दिए थे, दे देंगे सर, आप फिक्र नहीं करें, अड्डे भी दे देंगे। ड्रोन्स यहीं से उड़ा करते थे, यहीं से उड़ते थे, मरने वाला भी उड़ाने वाला भी कलमा गो था और मारे जाने वाले भी कलमा गो थे। एनीवेज, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने आपका बहुत सारा फैज़ अमीर साहब का जो वो इक़दाम था मेरा ख़्याल है कि वो दुरुस्त नहीं था। उसको बिल्कुल यहाँ जो इवन सरकारी हलकों में अच्छे अंदाज़ में नहीं लिया गया। उसका वो काउंटर प्रोडक्टिव था, वो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं था। या तो वो चाय की तस्वीर दिखाते कि वो मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के साथ पी रहे हैं या वो सिराजुद्दीन हक़ानी के साथ पी रहे हैं, तो फिर तो समझ आता। लेकिन उसका फ़ायदा होने के बजाय हमें इंटरनेशनल सतह के ऊपर नुकसान ज़्यादा हुआ। आप फ़रमाइए। चुकी है। अभी आपने अमेरिका की आप बात कर रहे थे और देखिए साहब, ईरान से हम रशिया से तेल ले सकते थे, इंडिया ने उसका भरपूर बेनिफिट लिया। हम अब ये डील ईरान के साथ भी कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस हैं, रशिया से भी हम इसीलिए ब्लॉक हुए ना कि वेस्ट ने रशिया पे सैंक्शंस लगाई हुई हैं। ईरान के ऊपर भी अमेरिका की इतनी सैंक्शंस है, आपको हिलने नहीं देगा अमेरिका, कभी सवाल नहीं पैदा हो। तो आपने अभी बड़ी प्यारी तस्वीर दी कि आप $15 बिलियन तक के हुजूम की उनके साथ कारोबार कर सकते हैं और फिर हमें मगरिब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगरिब आपको जाने देगा ना, तो फिर ना उन्होंने तो वैसे ही लड़वा देना है आपको। नहीं, आप देखें, मैं आपको सीधी-सी बात बताऊँ कि अब हम जो है ना नाउ और नेवर वाली सिचुएशन के ऊपर तकरीबन पहुँच गए हैं। आप ठीक है, आप जब एक मुआशरे के अंदर जब क्लास एलिमिनेट हो जाती है ना और सफ़ेदपोशी के ऊपर मजबूर हो जाते हैं, तो फिर उस मुआशरे के अंदर झक्कड़ ज़रूर चलते हैं और झक्कड़ चलने वाले हैं। ईद के बाद जो है मौलाना फज़ल रहमान, जमात इस्लामी, पीटीआई और दीगर जमातें जो हैं वो ठीक है, आपने वो एक वोट भी नहीं मिला इनको क्या नाम है जहाँ महमूद अचकज़ई को। अच्छा जी लेकिन जी। लेकिन उसके बाद क्या होगा? आपका क्या ख़्याल है कि ग्राउंड पे भी सपोर्ट लूज़ कर गए हैं? तो फिर ग्राउंड पे सपोर्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इनके कद में इज़ाफ़ा हुआ है इन लोगों के। और इसका मतलब ये है कि भूख से सताई
बेरोजगारी से सताई, बिजली, पानी, गैस से सताई, फ्यूल की कीमतों से सताई और महँगाई की सताई 42% जो है इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। तो ऐसी हालत के अंदर फिर अवाम अगर सड़कों पे आई ना, तो यकीन माने कि कोई फिर रोक नहीं पाएगा। फिर वो ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा, जिसका भी आपने ज़िक्र किया शुरू में, वो ये है डीन्यूक्लियराइज़ेशन ऑफ पाकिस्तान। फिर वो बहाना बना लेंगे कि जनाब देखिए ना, अवाम के जो मुहाफ़िज़ हैं, वही अवाम जो है उनके सामने नबर्द आज़मा है और यही आजकल देखिए ना एक नफ़रतों का बीज तो बोया जा चुका है। और उसके अभी देखें डोनाल्ड लू ने भी अभी जो बात कही है, अभी रिसेंट उसका जो स्टेटमेंट आया है, उसमें इलेक्शन के हवाले से उसने कुछ बातें कही हैं, लेकिन उसमें साइफर के बयानिए को टोटल झूठ करार दे दिया गया है। उसके अंदर उसने कहीं भी और खुद जो यहाँ उनकी लीडरशिप है मौजूद, उसने भी साइफर को जो है वो डिली-डैली बस एक गोल-मोल करके बात करके ठंडा ही करने वाला काम किया है। वो खुद बाद में फवाद चौधरी साहब उनसे मिलते रहे और अमेरिकी सफ़ीर उनके घर आना-जाना लगा रहा और इसी तरीके से जो रऊफ़ हसन साहब और खुद शाह महमूद कुरैशी साहब जो है बाकायदा ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के अंदर 5-6 सफ़ीरों के साथ जिसमें अमेरिका जो बर्तानिया की सफ़ीर थीं, वो भी मौजूद थीं, यूरोपियन यूनियन की भी थीं, इसी तरीके से जो कनाडा की सफ़ीर थीं, वो भी थीं और फिर जो खुद ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जो थे, वो भी मौजूद थे। तो ये देखिए, ये सारी बातें जो हैं बुनियादी तौर पर असल में पाकिस्तान को ग्लू करके रखा हुआ है इस टाइम पे हमारे जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज़ ने। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज़ जो है, उसको अपनी स्ट्रैटेजी को मेरा ख़्याल है कि उसके ऊपर उनको रिवाइज़ करना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा, चाहे वो अफ़गानिस्तान के हवाले से हो, क्योंकि हमें जो है वो जो उनके सोशल प्रॉब्लम्स हैं उस इलाके के, जो इसको माज़ी का फाटा कहा जाता है, उसके सोशल, उसके इकोनॉमिकल और उसके जो ट्रेडिशनल और उसके जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। क्योंकि पहले भी याद होगा आपको आरिफ़ा साहिबा कि बहुत जंग हुई, एपीएस के वाक़या भी हुआ, उससे पहले भी खुदकुश हमले होते रहे और 2006 से जो खुदकुश हमले शुरू हुए, वो एक बड़ी तवील दास्तान है, ड्रोन हमले होते रहे। लेकिन फिर क्या हुआ? डमाडोला का वाक़या हुआ, चीना गई खाड़ का वाक़या हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि इतनी कैज़ुअल्टी रेशियो नहीं था जितना आज हो गया है और फिर पहले ये सिविलियन को भी टारगेट करते थे। अब इन्होंने सिर्फ़ फ़ौज को टारगेट करना शुरू कर दिया। मेरा भी यहाँ एक सवाल ज़रूर बनता है और जिस तरह आपने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की, मैं देखिए ना मैं उनका एक पुराना साथी हूँ और मैं उनको एक मॉरली एक सपोर्ट करता था। लेकिन आज मेरा ये सवाल है कि जब 2021 में उन्होंने फ़तह कर लिया और 3 हफ़्ते पहले काबुल से अलावा सारे इलाका को फ़तह कर लिया था और उसके बाद फिर काबुल को भी बगैर गोली के फ़तह कर लिया। अमेरिकन जो है 1 सितंबर 2021 को वहाँ से जो है बोरिया-बिस्तरा उन्होंने गोल किया अपना। तो फिर वो जो असला खाने थे, वो किसके पास चले गए? ज़ाहिर है वो तालिबान के कंट्रोल में गए क्योंकि खुद वो ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान हमारे मुकम्मल कंट्रोल में है और अगर वो मुकम्मल कंट्रोल के अंदर है, तो फिर असला खाना से जदीद असला टीटीपी पाकिस्तान को कैसे पहुँचता है? ये है सवाल। इसके ऊपर पाकिस्तान ने उनको नाकाबिले तर्दीद सबूत भी दिए। ख्वाजा आसिफ पीडीएम की हुकूमत में डीजीआईएसआई को लेके जनरल नदीम अहमद आजम को वहाँ गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो हमारी बात को जो है उन्होंने सुनी अनसुनी कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हमने इससे पहले जब अमेरिकन वहाँ मौजूद थे, तो जमातुल अहरार के खिलाफ एक हमने पीएफ की स्ट्राइक की थी और उसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मेजर्स कहते हैं, वो हमने किया और उसके अंदर जमातुल अहरार को तकरीबन नीस्त-ओ-नाबूद कर दिया गया। अब जो उन्होंने रिसेंट स्ट्राइक की, ये भी जो है वो वहाँ हुई, लेकिन इसके अंदर एक जो कैच है, वो मैं आपको देता चलूँ। ज़रा गौर से सोचिएगा। टीटीपी अफ़गानिस्तान में तालिबान अफ़गानिस्तान के जो हैं, जो कि अफ़गानी तालिबान हैं, क्या उनके लायबिलिटी नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है कि ऐमन ज़वारी को जो है किसने टिप ऑफ किया था कि वो वहाँ मौजूद हैं? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि स्टेट ऑफ खुरासान जो है वो वहाँ बने। दुख सहें भी फाख्ता और कव्वे अंडे खाएँ, ये मुमकिन नहीं होगा। कुर्बानियाँ अफ़गानियों ने दी और आके खुरासान स्टेट आप बना लें और वहाँ टीटीपी के हेडक्वार्टर बनाएँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टैसिट अप्रूवल से हुआ? ये मैं आपके लिए एक छोटी-सी हिंट छोड़ रहा हूँ। मगर बहुत शुक्रिया सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें हैं आपने जो की हैं। आई विश कि आप इन तमाम लोगों से मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। सब आपने कहा ना सब्सिडीज़ को हटाया जाए, तो आप डू यू थिंक कि सब्सिडीज़ को हटाया जाएगा ऑन दीज़ ब्यूरोक्रेट्स को सहूलियात, और जो आपके हाज़िर और रिटायर्ड जजेस हैं, आर्मी के जनरल्स हैं,
کیا ان کو بجلی پانی تیل جو مفت دیا جاتا ہے، گاڑیاں نوکر مفت دیے جاتے ہیں، وہ ان سے لیے جائیں گے تاکہ امیر سے لے کے غریب کو دے دیا جائے؟ کوئی چانس ہے اس کا؟ I don't think so and I'll doubt it because امیر گدوں کی طرح بوٹیاں نوچ رہے ہیں اس وقت مرے کھرے لوگوں کی۔ دیکھیں یہ بات آپ نے جو ہم کبھی سنتے ہیں نا ٹی وی کے اوپر کہ پیاز 300 روپے کلو ہو گیا، 500 روپے ہو گیا، ٹماٹر فلانا ہو گیا، 600 روپے ہو گیا۔ امیروں کے لیے یہ پرواہ نہیں ہے، وہ کون سا جاتے ہیں کوئی ہاتھ میں ٹوکری پکڑے۔ بل بنتا ہے 1,00,000 50,000 ہزار 2 لاکھ بل بنتا ہے اور ہوٹلز بھرے ہوئے جی ہیں۔ روٹی 30 روپے کی ہو گئی ہے آپ بیٹی، کے ملک میں روٹی جو 30 امیر ہے وہ بہت امیر ہے، ہی کین افورڈ اینی تھنگ، مگر روٹی میجورٹی 30 روپے کی ہو گئی ہے۔ جو آپ نے سوال کیا، اگر آپ یہ نہیں کریں گے، اگر آپ جو ہے ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غریب کو امیر کر دیں گے، لیکن کم از کم غریب کو یہ ضرور سہارا دے دیں کہ غریب کو اگر مزید ہم غریب نہیں کریں گے، اور غریب کو جو ہے اگر یہ نہیں ہے تو ہم انصاف ضرور دیں گے۔ حفاظت، کفالت اور عدالت، یہ 3 چیزیں اگر آپ نہیں دیں گے تو پاکستان میں ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو آپ اور میں اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، اور میں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے اپنے ملک سے بہت محبت ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں کے اندر جس دن روٹی کے لیے لوگ باہر نکل آئے، میری بات مارک کر لیجئے، جس دن روٹی کے لیے باہر نکل آئے تو بڑی بڑی دیواروں اور بڑے بڑے بنگلوں اور بڑے بڑے دفتروں کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بھی جو گارڈ ہیں وہ بھی بھوکے ہیں، نہیں ہوگا، کوئی ان محفوظ کے نہیں بھی ہے۔ گھرانوں میں دانے نہیں ہیں، ان کی بھی والدہ نے رات کو فون کر کے کہا ہے کہ بیٹا بجلی کٹ گئی ہے کیونکہ بل کے پیسے نہیں تھے۔ یقین مانے اس مہنگائی کے اندر جو ہوتا ہے نا، مہنگائی مذہب کو نہیں دیکھتی، مہنگائی کبھی یہ نہیں دیکھتی، خدا نہ خواستہ وہ وقت نہ آئے، اللہ نہ کرے، جب ایک جو ہے وہ ملازم یہ سوچے کہ مجھے اپنے بچے کے نوالے کے لیے اپنے مالک کے بچے کا نوالا چھیننا ہے، اللہ نہ کرے، اور یہ ایسی صورت بہت شکریہ زیادہ دور نہیں ہے۔ سر، آپ میں یہیں پہ پروگرام کو کنکلوڈ کروں گی۔ میں آپ سے دوبارہ ضرور ٹائم لینا چاہتی ہوں ہر انسان سے۔ آپ نے حفاظت، کفالت، عدالت کی بات کی، عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے نوٹس میں بھی ہے، میرے نوٹس میں ہے۔ آپ نے پچھلے حصے میں جناب اسحاق خان صاحب کو ہارریبل اگزامپل کے طور پہ بیان کیا تھا۔ کس کو ہارریبل اگزامپل نہ بنایا؟ بھٹو صاحب کو ہارریبل اگزامپل بنایا، آپ نے محترمہ بے نظیر کو ہارریبل اگزامپل بنایا، نواز شریف صاحب کو آپ نے نکالا کیوں تھا؟ آپ نے ان کے پورے خاندان پہ اتنے کیسز کیوں چلائے تھے اگر آپ نے اتنی آسانی سے معاف کر دینا تھا؟ آج جو ملک میں ڈرامہ ہو رہا ہے سر، آپ مطلب اگر بیوقوف ان پڑھ سمجھتے ہوئے وہ کہیں کہ نہیں جو کچھ ہو رہا ہے، جو الیکشن ہوا اٹ واز فیئر، ایبسلیوٹلی رانگ سر۔ کون سا الیکشن ہوا ہے؟ شکریہ سر، بہت شکریہ۔ یہ تو بات ہوئی حفاظت کے لحاظ، عدالت کے لحاظ سے بھی بات ہو گئی، کفالت کے حفاظت کے لحاظ سے، اور عام آدمی کی زندگی تو وہی غربت کی زندگی ہے۔ آئی وش اس میں کوئی اس بات کو برا نہ لے، چند بڑے، وہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ کیا ہے کہ انسان کا جو پیٹ بھرے گا وہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ٹھیک ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور انسان کی جو پیٹ کی ہوس ہے یہ صرف قبر کی مٹی سے بھرے گی۔ اور صاحب اس میں رکھا تم کو بہتات نہیں، یہاں تک کہ تم نے قبریں جہاں دیکھی ہرگز نہیں، تم اس کو جب تک کہ یقین کی آنکھ سے نہ دیکھو۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو بات صحیح ہے، ساری بات چینج آف دا سسٹم کے بغیر آپ کا پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ دس از دا میٹر، وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ ناؤ۔ کیا بات سر، بہت شکریہ، مگر ہم ایگزامپل نہیں لیتے، مگر مجھے لگتا ہے کہ جتنا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہر ایک ہارریبل ایگزامپل بنایا گیا، اور آئی ہیو نتھنگ، میرا خدا حاضر ناظر جانتا ہے، میں روزے سے بیٹھی ہوئی ہوں، میری خدا کی قسم کوئی پارٹی نہیں، میں نے ہمیشہ پاکستان آرمی کو رسپیکٹ کیا، بٹ ناؤ ہمارے چند لوگ جو سیلفش ہوئے وہ اپنی ذات سے اتنی بری طرح سے گرے کہ ان کا ماں باپ اولاد ہر چیز پیسہ ہو گیا۔ بھٹو صاحب کا فیصلہ آیا، قاضی فائز عیسیٰ کہیں یہ 2 جملے وہ بھی لکھ دیتے کہ جو اس ٹائم پہ جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا ان کو بھی تو پھر کچھ نہ کچھ ان کے لیے کوئی 2 لفظ جملے بول دیتے کہ انہوں نے فیصلہ غلط دیا تھا تو کیوں دیا تھا، اور کیوں ان کو جو ہے پھر سزا نہ ملے۔
سورۃ بقرہ کی آیت ہے 135. یہ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یعنی اے ایمان والو قائم رہو انصاف پر، گواہی دو اللہ کی طرف اگرچہ نقصان ہو تمہارا یا ماں باپ کا یا قرابت والوں کا. اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو ان کا خیر خواہ تم سے زیادہ اس کی پیروی، یعنی اپنی خواہشوں کے مطابق اس کی پیروی نہ کرو، خواہش کرو انصاف کرنے میں. اگر تم زبان ملو گے یا بچا کر چلو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. یہ سر ہمارے جو اس وقت ادارے ہیں نا، دے آر پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول. پاکستان کا بہت وقت ضائع ہوا، پیسے ضائع ہوئے. دس از ناٹ کہ اگر میں کسی بات کی نشاندہی کر رہی ہوں تو میں ان کی دشمن ہوں. آئی ایم ناٹ. آئی لو مائی پاکستان. مگر غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد ان غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے. That's all what I say. بالکل. میں نے آج بھی کہا نا کہ اس مجاہد اسلام جناب جنرل حمید گل صاحب کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، آج بھی ان کی چیزوں کو کرتے ہیں. انہی کے سپوت جناب میرے ساتھ ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. آئی نو یو ورک ویری کلوزلی ٹو آل دیز پیپل، بٹ انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ بات ضرور کریں گے. اجازت دیجیے. بڑی نوازش. السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک پہ امن اور سلامتی رکھے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. تب کا میرا آپ کا اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ دنیا میں امن اور سلامتی قائم کرے. آمین ثم آمین. یا اللہ تعالیٰ آپ کبھی نوٹ کیجئے گا، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، مقبولیت ہے، آپ برانڈز کو پہنتے ہیں، بٹ ڈونٹ فرگیٹ دوز جن کے ٹیبل کے اوپر فوڈ نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں. اور اگر یہ صورتحال ایسی رہی تو انسان نہیں پھر وحشی بن جائے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.